Uh, in this lecture, I will discuss with you next topic of your syllabus, that is change of variables. So understand its definition, what is change of variables. After that, we do some examples on this topic. So firstly, write down its definition. What is it is definition? How we change the variables like that. If u is equal to f of x comma y, simply you need to understand this. It means that u is a function in terms of x and y. So it means that u depends upon x and y. It means that x and y are independent variables and u is dependent on x and y. In other way, you can say u is the function of x and y. So you need to understand जो मैंने इस पे लिखा है where, लेकिन यहाँ पे क्या है further where x equal to phi of s comma t and y is equal to psi of s comma t. What it means? Mostly understand this. It means that x is a function of s and t, and it means that x, s, and t are independent variables, and x is dependent variable on which it depends s and t. So similarly, y is a function of s and t, and x, s, and t are independent variables. Y is dependent variable. So it wholly and solely, what we can say that ST. phi of s comma t, yes, and psi of s comma t. So wholly and solely we can say u is a function in terms of s and t, because we can substitute the value of x, we can substitute the value of y. What we will get? We will get the function in terms of s and t. So write down, because now we have to change the variables. So how we change these variables? Check. It's necessary. It's often necessary to change expressions. To change expressions, जिस एक्सप्रेशन में क्या होगा? इन्वॉल्विंग 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 u x y, u divided by del x, del u divided by del y. See, it means that it's del square u divided by del x square, del square u divided by del y square, like that. So what is meant by expression? Do you know what is expression? Yes, I think eighth से ही पढ़ा what is expression. In which we use fundamental operations. म्यूट करो, सभी अनम्यूट मत करो. इन्वॉल्विंग, यस, व्हाट इज एक्सप्रेशन? क्या बोला आपने? Fundamental operations use variable and sum या क्या? Simply what it's literally meaning is that combination of variables and constants. Fundamental Four fundamental operations. This is called an expression. So now there is an expression. It is often necessary to change the expression. जिस expression में क्या क्या होगा? u होगा, x होगा, y होगा, इनका derivative अगर होगा, क्योंकि as you know that we cannot write down here del x divided by del u. Why? Because u is independent. U is dependent on x and y. So what we can write down del u divided by del x. और ये हमें किस में कन्वर्ट करना है, टू किस में चेंज करना है? ये हमें चेंज करना है. किस में करना है चेंज? इन एक्सप्रेशंस में, जो उसमें क्या क्या होगा? u होगा, x s होगा, t होगा, del u डिवाइड बाय del t होगा, del u डिवाइड बाय del, ओके, del u डिवाइड बाय del t होगा, del u डिवाइड बाय del s होगा, etc एटसेट्रा. ठीक.
So now the question is how we convert. Only we have to change these expressions which includes u, x, y, del u divided by del x, del u divided by del y. किस में हमें चेंज करना है? इन एक्सप्रेशंस में. जिस एक्सप्रेशन में क्या होगा? u होगा, s होगा, t होगा. जैसे कि मैंने बताया अभी यहाँ पे हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं. u इज इक्वल टू x को अपना वैल्यू डालो y ऑफ s comma t. That means x is a function of s comma t, y is a function of s comma t. Wholly and solely u is function of s comma t. So that's why हमें किस में. Now the question is how we convert this. So that's why its name is change of variable. तो राइट डाउन द फॉर्मूला. जैसे कि मैंने ऑलरेडी वो रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 लिखवाया, उस पे आप फोकस करो. प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि मैंने लिखवाया रिजल्ट फर्स्ट एंड रिजल्ट सेकंड, यहाँ से हमें वही यूज करना है फिर से. थ्रू दैट फॉर्मूलाज जो मैंने वहां पे लिखी है उनकी जरिए हम ये एक्सप्रेशन कर सकते हैं. द नेसेसरी फॉर्मूला फॉर द चेंज ऑफ वेरिएबल्स, द नेसेसरी formula the necessary formula for the change of variables for the change of variables for the change of variables are easily obtained, are easily obtained. But how we obtain? Just see. If t is regarded as constant, if t is regarded as a constant, if t is regarded as a constant, then x comma y comma u, then x comma y comma u will be functions of s alone, will be functions of s alone. So what it means? Firstly, what we have to do, if we treat one of them is constant, means because there are two independent variables, we need to find out partial derivatives. It means that we treat t as a constant. So what you remains function in what? Just to see, x remains in function in s, y remains function in में रहेगा, s में रहेगा, क्योंकि जो t है ये मैंने क्या मान लिया, दिस इज मैंने ये क्या माना, t as a constant. x is a function of s, y is a function of s, is it correct? And now अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे u भी फंक्शन किस में आएगा, s में ही आएगा. क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने समझाया, अगर हम x को वैल्यू डालेंगे 5s, t एंड y को वैल्यू डालेंगे psi of s, t, wholly and solely u will also the function in terms of s and t. So t is treated as constant, u is also the function of s. वही तो मैंने यहाँ पे लिखा. If t is treated as constant, then y, जैसे कि यहाँ पे आपको पता चलता है x, y, u, यहाँ से पता चलता will be a function of s alone. Is it clear? ये लाइन समझ आया? Sir. Okay. Therefore by किससे? By result first. रिजल्ट फर्स्ट जो मैंने उसमें लिखा है ना कंपोजिशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, रिजल्ट फर्स्ट इन कंपोजिशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो. जो मैंने वो रिजल्ट लिखवाया आपको कंपोजिशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, अब अपना कॉपी चेक कीजिए, वहां पे मैंने लिखवाया आपको. सो यू विल गेट बाय दैट what you will get, we can write down del u divided by del s, because now u is a function. क्योंकि इस लाइन से हमें पता चलता है, इस लाइन से u is a function in s alone. So we can find out del u divided by del s. How we can find out this? We can write down this as
del u divided by del x into del x divided by del s plus del u divided by del y divide into del y divided by del s। लिखवाया मैंने ये फॉर्मूला, याद है किसी को? अपना कॉपी चेक कर लो एंड देख। इनके शुद्ध हम del u divided by del y. सर del u divided by del y into del y divided by del s। सर ये पर पर therefore by therefore by result first फिर क्या है? in composition of derivatives, in composition derivatives, उसका टॉपिक का नाम ये है ना, कंपोजिशन ऑफ डेरिवेटिव्स। जो मैंने वहां पे रिजल्ट फर्स्ट लिखवाया वही, उसी से हम ये फॉर्मूला बना सकते। Total derivative. del u डिवाइड बाय, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे रिजल्ट फर्स्ट पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा, अगर आपको याद है रिजल्ट फर्स्ट में मैंने क्या लिखा, डेल यू डिवाइड बाय डेल एस। मैंने किसके बराबर लिखा? मैंने लिखा डेल यू डिवाइड बाय डेल एक्स इनटू डी एक्स डिवाइड बाय डी एस। क्यों मैंने लिखा डी एक्स डिवाइड बाय डी एस? वहां पे मैंने लिखा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। क्यों मैंने लिखा वहां पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव? बिकॉज द रीजन इज दैट एक्स इज अ फंक्शन इन एस अलोन देयर। x is a function in s alone. That's why वहां पे मैंने लिखा del dx डिवाइड बाय ds। आप चेक कीजिए, अगर आपके पास कॉपी है ना, आप चेक कर सकते हो कि मैंने लिखा कंपोजिशन ऑफ डेरिवेटिव्स में रिजल्ट फर्स्ट, वहां पे मैंने लिखा del u डिवाइड बाय del x इनटू dx डिवाइड बाय ds। क्यों? बिकॉज देयर, मतलब वहां पे जो x है ना, दिस इज अ फंक्शन ऑफ s। यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ एस एलोन है, देयर इज नो डाउट, लेकिन मैंने माना टी एज कांस्टेंट मान लिया। एक्चुअली है यहाँ पे दो वेरिएबल्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है ना? अपना कॉपी चेक कीजिए, यू विल गेट इट। सो नेम इट थर्ड, सॉरी नेम इट फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट है, एंड दीज टू इक्वेशंस नेम सेकंड, एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड जो आपको यहाँ पे मिला। लेकिन वहां पे, यहाँ पे हमने क्या किया, देयर इज नो नीड टू राइट डाउन। अब लिख सकते हो भी हैं या ओमिट भी कर सकते हैं। वायर, यहाँ पे मैंने क्या किया, वायर द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स, वायर द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स, वायर द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स have been replaced by have been replaced by किन से मैंने रिप्लेस किया? पार्शियल डेरिवेटिव से। partial derivative have been replaced by partial derivatives have been, okay, because क्यों ऐसा क्यों मैंने किया? because the reason is because x comma y are functions of two variables s and t। मैं पेज टर्न करूं, लिखा सर because x y पास फिर क्या है? because x comma y are functions of variables s and t, है ना? यहां से पता चलता है x is a function in terms of s and t, y is a function in terms of s and t। इसीलिए मैंने ऑर्डिनरी मीनस ये वाला डेरिवेटिव है ना, ये dx डिवाइड बाय d, अगर हम यहाँ पे लिखे ना dx डिवाइड बाय d, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी। लेकिन ये ऑर्डिनरी मैंने किस से रिप्लेस किया? यहाँ से पार्शियल। क्यों मैंने पार्शियल से रिप्लेस किया? बिकॉज x एंड y आर फंक्शंस ऑफ s एंड t। ये आपको पता है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन भी किया है, इफ द फंक्शन if any variable depends on two independent variables, then we have a need to find the partial derivative. We cannot find the ordinary derivative। समझ आया ordinary derivative क्या होता है? समझ आया? So this formula is useful for you
बस इसी फॉर्मूला से हम कर सकते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल्स, जैसे कि मैंने लिखा थर्ड वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब दो चार लाइन्स और लिखो, फिर हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। सिमिलरली मतलब सिमिलरली यही रास्ता हमें सिलेक्ट करना है। सिमिलरली रिगार्डिंग एस एज कांस्टेंट, पहले मैंने क्या माना, टी एज कांस्टेंट, अब मैंने माना रिगार्डिंग एस एज कांस्टेंट। रिगार्डिंग एस एज कांस्टेंट we obtain what we obtain what we obtain del u divided by del t। अब t वेरिएबल है, ठीक है ना, क्योंकि s कांस्टेंट is equal to del u divided by del x into del x divided by del t plus del u divided by del y into del y divided by del t. So this is equation 4. On similar approach you will get this formula. On solving third and fourth, जब हम ये सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्व किस पे करना है, किसका वैल्यू हमें निकालना है। देखिए ऑन सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ किस में इक्वेशन है, अब बताइए किस वेरिएबल, मतलब आप लिखिए आज पूरा स्टेटमेंट। एज साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन, किस में ये इक्वेशंस है, इन। आप देखिए दोनों इक्वेशन में है डेल यू डिवाइड बाय डेल एक्स, एंड दोनों इक्वेशन में है एंड डेल यू डिवाइड बाय डेल वाई है, दोनों इक्वेशंस में है। अब देखिए जो कि मैंने थर्ड एंड फोर्थ लिखा, we get what we get their values in terms of, we get their values in terms of del u divided by del s, del u divided by del t, u comma s comma t। ठीक, समझ आया, बस ये है। अब देखिए जैसे कि कंबाइन लिखो आप यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन थर्ड क्या था, ये आपको नहीं लिखना है, अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये वाला लाइन जो कि मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा है। थर्ड इक्वेशन मैंने लिखा है डेल यू डिवाइड बाई डेल एस इज इक्वल टू डेल यू डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एस प्लस डेल यू डिवाइड बाई डेल वाई इंटू डेल वाई डिवाइड बाई डेल एस। एंड नेक्स्ट इक्वेशन मैंने लिखा जो फोर्थ है, ऊपर लिख कर है डेल यू डिवाइड बाई डेल टी इज इक्वल टू, किसके बराबर मैंने लिखा, डेल यू डिवाइड बाई डेल टू डेल एक्स डिवाइड बाई डेल टी प्लस del u divided by del y into del y divided by del t। अब देखिए यहाँ पे भी del x del u divided by del x है, यहाँ पे भी del u divided by del x है, यहाँ पे भी del u divided by del y है, यहाँ पे भी del u divided by del y है। It means that these two functions are in del u divided by del x, del u divided by del y। So मानो ये कोई वेरिएबल है, ये आप मतलब रिप्रेजेंट कीजिए x से, ये y से रिप्रेजेंट कीजिए, ये x से, ये y से। It means that we can solve these two equations for x and y, and we will get the value of x and y in terms of their coefficients. What are its coefficients? क्या किस किस में आंसर आएगा, del u divided by del s, del x divided by del x divided by del s, u s t आएगा, ठीक है ना, मतलब जो भी इसमें है वो आएगा। अब देखिए हमें करना है ना उस पे एग्जाम्पल्स, वहां से आपको पता चलेगा। या समझ के हाउ दीज टू इक्वेशंस आर इन del u divided by del x and del u divided by del y। जैसे ना कि आप लीनियर फंक्शन, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल सॉल्व करते हो, है ना, समझ आया, समझ आया कि नहीं, बोलिए। Sir, we could you repeat it? ओके, जैसे कि आपने ये फॉर्मूला ऑब्टेन किया है, का नाम आपने रखा थर्ड, treating t as constant
एंड ट्रीटिंग एस एस कंस्टेंट, आपने ये फार्मूला ऑब्टेन किया, ठीक। सो नाउ ऑब्जर्व क्या करना है, कॉमन क्या क्या है इसमें, इसमें डेल यू डिवाइड बाई डेल एक्स है, इसमें भी डेल यू डिवाइड बाई डेल एक्स है, इसमें डेल यू डिवाइड बाई डेल वाई है, इसमें डेल यू डिवाइड बाई डेल वाई है। इट मीन्स दैट this is a function in del u divided by del x and del u divided by del y. So this is also an equation in terms, not function. This is also an equation in terms of del u divided by del x, del u divided by del y. So अब we can solve equation third and fourth. इसके लिए किन का हमें वैल्यू निकालना है, हमें किन का वैल्यू निकालना है। आप अगर हमें ये सॉल्व करना है लेकिन किसी का वैल्यू हमें निकालना, हाँ किसका वैल्यू हमें निकालना है, यहाँ पे किसका वैल्यू हमें निकालना है, डेल यू डिवाइड बाई डेल एक्स का और डेल यू डिवाइड बाई डेल यू का। और जो डेल यू डिवाइड बाई डेल एक्स और डेल यू डिवाइड बाई डेल वाई, जो वो इनका आंसर आएगा, आंसर में क्या क्या होगा इन्वॉल्व, आंसर में होगा इन्वॉल्व डेल यू डिवाइड बाई डेल एस, del u divided by del t, u, s and t. It means that in terms of their, you will get answer in terms of their coefficients. You will get answer in terms of their coefficients. यहाँ पे ये these are constants, ये जैसे कि आप लिखते हो ना, यहाँ पे 3x plus 4y is equal to 7, फिर 9x is equal to 3z कुछ 3y is equal to 8, मानो कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फिर आप सॉल्व करते हो, किसके लिए आप सॉल्व करते हो, आपको किसका वैल्यू निकालना होता है, x एंड y का। X and Y. ये भी आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, किसके लिए सॉल्व करनी है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ del u डिवाइड बाय del x, del u डिवाइड बाय del y। Del Y. समझ आया? Yes, sir. ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ना, आप देखिए, इट इज often necessary to change the expressions, ये हमें चेंज करना है। That means we have to find the value of del u divided by del x, del u divided by del y। यहाँ से आपको पता चलेगा कि क्यों हमें इन्हीं का वैल्यू निकालना है, किस में हमें ये कन्वर्ट करना है, del u divided by del t, del u divided by, आया समझ? Yes, sir. ओके, गुड आउट। No, sir. Yes, now write down, if instead of equation second, अब लिखिए, if instead of the equation second इक्वेशन क्या था, याद है किसी को, x is equal to phi of s comma t, y is equal to psi, this was equation second, ठीक। s and t are given in terms of x and y, अगर वहां पे ऐसा होगा, से यहाँ पे x दिया in terms of s and t, y दिया in terms of s and t, अगर ऐसा होगा s is equal to phi of x comma y and t is equal to psi of x comma y, reverse process is there। अब यहाँ पे s ही गिवन है in terms of x and y, t ही गिवन है in terms of x and y, तो उस टाइम हमें क्या करना है, वही s and t are given in terms of x and y, in terms of x and y, से माना कि मैंने इससे डिनोट किया, से s is equal to, this is called zeta, s is called zeta of x comma y and t is equal to neta of x comma y। Simply, it is not nothing, it means that s is a function in terms of x and y, t is a function in terms of x and y। अब इक्वेशन सेकंड पे नजर डालिए, वहां पे क्या था, वहां पे था x is a function of s and t, y is a function of s and t, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, x is a function of, s is a function of x and y, t is a function, मैंने रिवर्स किया यहाँ पे। तो similarly you will get this, then it is easier to use the formula। हम ऐसे ही फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं ना, देन इट इज इजियर टू यूज द फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, देन इट इज इजियर टू यूज द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला।
del u divided by del x is equal to del u divided by, sorry, del u divided by del x, del u divided by del s into del s divided by del x plus del u divided by del t plus sorry into है, sorry not plus, बीच में प्लस, यहाँ पे प्लस del t divided by del x, मतलब अपोजिट करना है अब बस, बाकी तो कुछ नहीं, ठीक है। And you will get one more equation you will get, and name this as, these two equation named, this is fifth and this is sixth one, huh? And one more equation you will get, del u divided by del y, किसके बराबर वो आएगा, लिखा सब भी नहीं है, लिखा, Yes, sir. Sir. okay. And you will get that del u divided by del y. Next, in similar fashion, del u divided by del s into del s divided by del y plus del u divided by del t into del t divided by del y, and name it 7. अब समझ आया, फाइनली Six. गेट 4 इक्वेशंस, थर्ड फाइनली जो हमें जरूरत है, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, और इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, किसके लिए, वो हमें सॉल्व करने है del u डिवाइड बाय del x के लिए एंड del u डिवाइड बाय del y के लिए। ये हमें सॉल्व किसके लिए करना है, del u डिवाइड बाय del s, del u डिवाइड बाय del t, क्योंकि कॉमन जो इक्वेशन 6 और 7 है, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, वो किस में आएगा। मैंने बोथ वेज लिखवाया आपको कि हाउ वी चेंज द वेरिएबल्स, यू नीड टू और फॉर्मूलाज एंड नथिंग एल्स। अब लिखा, समझ आया, समझ आया, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा ना, इन स्ट्रीट से आगे जो कि मैंने लिखा वो सिमिलर फैशन है, वही सेम टू सेम आपको अप्लाई करना है। लेकिन आपको क्या, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मैंने ऐसी फंक्शन ले लिया इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, टी ही फंक्शन ले लिया इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो वहां पे क्या था, एक्स ही फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एस एंड टी, वाई फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एस एंड टी, सो दैट्स द रीजन, नथिंग एल्स। बाकी तो सिमिलर फैशन आपको यूज करना है। समझ आया, एनी डाउट, किसी को डाउट पूछ सकते, अब हमें एक्सप्लोर करना है उसके ऊपर। आप किसी को डाउट है, आप पूछ सकते हैं। यस, डाउट है, No, sir. पर you. ओके। So now write down the example first. Example first on it. If u is equal to f of x minus y, y minus z, z minus x, प्रूव कीजिए, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट del u divided by del x plus del u divided by del y plus del divided by del z is equal to 0. ये हमें दिखा। Now, how can we do this question? It only u is given. It means that u is a function in terms of x and y, but it is not in explained form. This function is equal to what? So it means that we cannot solve this function directly. What we need, हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें use of variables करना. So how we make the change of variables, just to see.
So solution, we have, हमारे पास क्या है, u is equal to f of x minus y, y minus z, z minus x, and we have to prove that, हमें क्या दिखाना है, we have to prove that del u divided by del x plus del u divided by del y plus del u divided by del z is equal to 0. So first step that you need to do, put, क्या कर रहे हैं हमें, किस तरीके से हम करेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल्स यूज, x माइनस वाई इज इक्वल टू r, y माइनस z जो यहाँ पे है, y माइनस z इज इक्वल टू s, and z minus x is equal to t. So that now this function will use the function in terms of what, so that u किस में function बनेगा, अब u is equal to f of, अब ये न्यू फंक्शन बनेगा, नया फंक्शन बनेगा, अब सेम f नहीं रहेगा, f भी X होगा, किस में बनेगा ये न्यू फंक्शन, r sorry. t. हाँ बोलिए, ठीक है. now calculate, आप फॉर्मूला यूज कर लो, हम डेल u डिवाइड बाय डेल x किसके बराबर लिख सकते हैं, डेल u डिवाइड बाय डेल x हम किसके बराबर लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं डेल u डिवाइड बाय डेल r इंटू डेल डिवाइड बाय डेल x, ठीक है ना, u जो यहाँ पे, इट मींस दैट, यहाँ पे अब देखिए ना कि जो u है फंक्शन, it depends on r, that's why we are taking partial derivative with respect to r. So r depends upon x, that's why we can take partial derivative with respect to x, and otherwise it is not possible. Plus del u divided by del s ले सकते हैं because depends on s, so we can take partial derivative of u with respect to x, and s depends on x, so we can take the partial derivative of the del s divided by del x, सॉरी यस, del u डिवाइड बाय del x, ये वापस आना चाहिए, तो बाद में ये 0 के बराबर, हमें उसके साथ नहीं है, लेकिन फॉर्मूला में इन जनरल फॉर्म लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें x नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विल बिकम 0, बट वी विल सी लेटर. एंड थर्ड, प्लस करके जनरलाइज हम रिजल्ट करने हैं, क्योंकि हमने वहां पे दो ही था इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इसीलिए हमें थर्ड टाइम ऐड करना है, किससे, डेल u डिवाइड बाय डेल t इंटू डेल टी डिवाइड बाय, ये फॉर्मूला समझ आया, X use case में उसने इलेक्ट्रॉन. हाँ, क्योंकि ये इस पे नजर कर लो, डेल यू डिवाइड बाय डेल एक्स है ना, जैसे कि रिजल्ट फर्स्ट मैंने लिखवाया, रिजल्ट फर्स्ट आप देखिए, रिजल्ट फर्स्ट शायद मैंने वो लेक्चर भी यूट्यूब पे अपलोड किया है, मुझे पता नहीं, आप देख सकते हो कि मैंने लिखवाया रिजल्ट फर्स्ट, क्योंकि डेल डेल यू डिवाइड बाय डेल एक्स हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल यू डिवाइड बाय, जिस पे वो डिपेंडेंट होगा, आई डोंट नो कि मैंने उस टाइम क्या ले लिया, फॉर एग्जांपल टी इंटू डेल टी डिवाइड बाय डेल एक्स, फिर मैंने डेल यू डिवाइड बाय डेल एस इंटू जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए इसमें, तो उतने दफा हमें ऐड करना है, सेम डेल यू डिवाइड बाय डेल एक्स, डेल यू डिवाइड बाय डेल एक्स. अब देखिए ना जो मैंने रिजल्ट लिखवाया, आप ठीक है. ये फॉर्मूला समझ आया कि नहीं, Yes sir. ओके, नाउ सी दिस इज इक्वल टू, ये मुझे क्यों कैलकुलेट करना पड़ा डेल यू डिवाइड बाय डेल एक्स, क्योंकि वी हैव टू प्रूव इट. आप यहाँ पे देखिए, मुझे जरूरत है ना, फजूल में हम कोई भी काम नहीं करते, जो मैथ स्टूडेंट्स है ना वो कोई भी काम ऐसे नहीं करते, क्योंकि एज पर रिक्वायरमेंट हमें जाना पड़ता है, डेल यू डिवाइड बाय डेल एक्स हमें जरूरत है, इसीलिए मुझे ये कैलकुलेट कर, डेल यू डिवाइड बाय डेल आर, डेल यू डिवाइड बाय डेल आर, ओके, क्योंकि we cannot calculate directly this is a function in terms of I don't know, but it is not in explained form,
बट वी कैन फाइंड आउट डेल आर डिवाइड बाय डेल एक्स, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। डेल आर डिवाइड बाय डेल एक्स किसके बराबर आएगा? शाबाश, यहाँ पे देख, जल्दी बोलो। 1, minus y. क्या हुआ आपको? 1, 1. 1 के बराबर, क्योंकि ये सेपरेट है ना, इसका डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू 0, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट x इज 1। समझ आया? इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, क्या हुआ आपको? डेल आर डिवाइड X has got differentiation 1, Y has got 1 0. माइनस 0 आएगा ना Yes, sir. रिजल्ट। Yes, sir. Yes. चलो, डेल यू डिवाइड बाय डेल एस ऐसे ही लिख दो, डेल एस डिवाइड बाय, लेकिन पहले देखो किसको पार्शियल डेरिवेटिव हमें करना है? एस को विथ रेस्पेक्ट एक्स, किसके बराबर आएगा? 0. बिकॉज एक्स इज नॉट देयर, प्लस डेल यू डिवाइड बाय डेल टी, ये किसके बराबर आएगा? डेल टी डिवाइड बाय डेल एक्स -1. माइनस। सो इवॉल्व करो, व्हाट यू विल गेट? डेल यू डिवाइड बाय डेल आर माइनस डेल यू डिवाइड बाय डेल टी। मोहसिन समझ आया? Yes, sir. इज इट सिंपल? अब हमें क्या लिखना है? अब हमें फाइंड आउट क्या करना है सुभाष? सेकंड टर्म चेक कीजिए, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? Del U divided by del Y. डेल यू डिवाइड बाय डेल वाई कर लो सिमिलरली। सिमिलरली डेल यू डिवाइड बाय डेल वाई किसके बराबर हम लिख सकते हैं? डेल यू डिवाइड बाय डेल आर इंटू Del R divided by del Y. डिवाइड बाय डेल वाई प्लस डेल यू Divided by डेल del एस इंटू डेल एस डिवाइड बाय डेल वाई प्लस डेल यू डिवाइड बाय डेल टी डिवाइड बाय डेल वाई। अब फाइनली देखिए किसके बराबर आपको मिलेगा? डेल यू डिवाइड बाय डेल आर डिवाइड बाय डेल एक्स किसके बराबर आएगा? जल्दी बोलो। डेल आर डिवाइड बाय डेल वाई, सॉरी, जल्दी क्विकली -1. किसके बराबर? -1. -1 एग्जैक्टली। डेल यू डिवाइड बाय डेल एस, डेल एक्स डिवाइड डेल एस डिवाइड बाय डेल वाई किसके बराबर आएगा? 1. 1 एग्जैक्टली, प्लस 1 के बराबर। डेल टी डिवाइड बाय डेल टी डिवाइड बाय डेल वाई किसके बराबर आएगा? 0. 0। सो फाइनली व्हाट विल गेट? माइनस टाइम्स डेल यू डिवाइड बाय डेल आर प्लस डेल यू डिवाइड बाय डेल एस। ठीक है, एंड हमें कैलकुलेट क्या करना है लास्टली? एंड हमें कैलकुलेट क्या करना है? Del U divided by del डेल यू डिवाइड बाय Z. डेल जेड, ये हम लिख सकते हैं ऐसे, डेल यू डिवाइड बाय डेल आर डिवाइड बाय डेल जेड प्लस डेल यू डिवाइड बाय डेल एस डिवाइड बाय del Z. जेड प्लस डेल यू डिवाइड बाय डेल टी इंटू डेल टी डिवाइड बाय डेल जेड। बताइए, डेल यू डिवाइड बाय डेल आर, डेल एक आर डिवाइड बाय डेल जेड इज इक्वल टू, 0. हाँ बोलो, 0. 0। डेल यू डिवाइड 0 डेल एस डिवाइड बाय डेल जेड -1. -1 minus प्लस डेल यू डिवाइड बाय डेल टी डिवाइड बाय डेल जेड किसके बराबर आएगा? 1. 1। 1 के बराबर। So finally what you will get? You will get del minus times del u divided by del s plus del u divided by del t। इसका नाम थर्ड दीजिए, इसका नाम सेकंड दीजिए, उसका नाम फर्स्ट दीजिए। इसका नाम del u divided by del x, del फर्स्ट दीजिए, इसका नाम Adding first, second, and third. yes, adding first, second and third,
adding first, second and third. What you will get? Del x plus Adding first, second and third. Adding first, second and third. We get what we get? Del u del u del divided by x del x plus del u divided by del y plus del u divided by del z is equal to del u divided by del r del u divided by del r minus del u divided by del t del u divided by del t plus minus del u divided by del r. minus minus yeah. divided by Minus del r ठीक है से cancel पर plus फिर del u divided by del s del u divided by del x फिर s del s yes अच्छा del u divided by del s minus del u divided by del s plus del u divided by del t del u It's zero is हम देखो यहाँ पे del u divided by del r del u divided by del r del u divided by del t del u divided by del t so finally you will get 0. यही तो हमें दिखाना भी था सिंपल है yes sir. now example second example second C if z is equal to f of x comma y and x is equal to e power u cos v comma y is equal to e power u sin v prove that हमें प्रूव क्या करना है prove that x times del z divided by del x del v plus Rishabh y is equal to e power u to v. e power u y times del z divided by del u is equal to किसके बराबर हमें दिखाना है ये किसके बराबर आएगा e power 2u into del z divided by del y and और आपको क्या दिखाना है del z divided by del x whole square plus del z divided by del y whole square is equal to e power minus 2u bracket del z divided by del z divided by del u whole square plus del z divided by del v del z divided by please wait 1 minute cooperate with me yes it is misspelled there del z divided by del v is correct del z divided by del v whole square ये हमें प्रूव कर ये वाला सो यहाँ पे भी हमें वही चेंज ऑफ वेरिएबल्स मेथड यूज करना है सो चेंज ऑफ वेरिएबल्स मेथड होली एंड सोली अगर देखा जाएगा कि जो कि मैंने रिजल्ट नहीं दिखवाया आपको खाली स्टेटमेंट लिखवाया उनका these two formulas are very important क्योंकि उन्हीं फार्मूला से हम चेंज ऑफ वेरिएबल्स कर सकते हैं अदरवाइज नॉट पॉसिबल सो सॉल्यूशन लिख दो how we do the solution sheet we have what we have z is equal to f of x comma y and x is equal to e power u cos v
y is equal to e power u sin v, and we have to show that, and we have to prove that, what we have to prove, ये वाला लिख दो और ये वाला लिख दो वापस सॉल्यूशन। ओके, see how we do this. Firstly, we will calculate del z divided by del v, क्योंकि हमें यही दिखाना है। And after that, we will calculate del z divided by del u, and finally we will calculate x times this, and we will get the answer. So, but del z divided by del v, we cannot calculate this directly. Why so? Del, यहाँ पे देखिए del किस में फंक्शन है, x एंड y में, लेकिन x खुद फंक्शन है u एंड v में. So it means that we need to apply the change of variable formula. What is this? Del z divided by del v हम किसके बराबर लिख सकते हैं? Now solution के, हाँ now इसके बाद आपको लिखना है del z divided by del v किसके बराबर हम लिख सकते हैं? del z divided by, शाबाश, किस वेरिएबल में? del z divided by del x, del x, del x divided by del v, del v, कि del x divided by del v हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस del z divided by del y into del y divided by del v. ये फार्मूला लिखना आता है आपके? नहीं, ये वाला फार्मूला आता है कि नहीं? z چھُ اَسہِ اور دِتھ x تہٕ y یَس منٛز. हाँ, z is a function in terms of x and y, but x and y is a function in terms of u and v. So z is a function of u and v, but we cannot calculate the z in terms of v directly. So what we need to apply this formula. है ना, z is a function of x and y, लेकिन x किस में खुद फंक्शन है? u and v में. y खुद फंक्शन है u and v में. अगर आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे x और y को, तो फाइनली व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट z इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ u and v, बट दैट इज नॉट इजी टू कैलकुलेट. कर ही नहीं सकते हम. क्यों? दिस इज फंक्शन इज नॉट एक्सप्लेनेड. फंक्शन किसके बराबर है फर्दर, हमें पता ही नहीं है. दैट्स व्हाई ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है. समझ आया कि नहीं? Yes, sir. डाउट है? बोलिए, कोई डाउट लग रहा है आपको? बोलिए. बोलिए, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, sure. दिस इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं किसके बराबर? डेल z डिवाइड बाय डेल x इंटू डेल x डिवाइड बाय डेल v. हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना यहाँ से. किसके बराबर आएगा? e पावर u इज नाउ कांस्टेंट, क्योंकि हमें v से करना है डिफरेंशिएट. डिफरेंशिएशन ऑफ cos v इज, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इज Minus sin v. माइनस साइन v. फिर क्या है? प्लस डेल z डिवाइड बाय डेल y. डेल y डिवाइड बाय डेल v हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से. किसके बराबर आएगा? e पावर u डिफरेंशिएशन ऑफ sin v is cos. Is it clear? Yes, sir. So let's calculate further. We can simply, no, you have to evaluate and minus बाहर आ जाएगा. Minus times del z divided by del x of e power u sin v plus del z divided by del y of e power u cos. So next to write down, you need to find out what del z divided by del u. लिखा है सभी ने? बस सर एक मिनट.
circle अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, डेल z डिवाइड बाय ऑल्सो डेल z डिवाइड बाय डेल u, किसके बराबर हम लिख सकते हैं। फर्स्ट मैंने कैलकुलेट क्या किया, डेल z डिवाइड बाय डेल v मैंने कैलकुलेट किया, अब डेल z डिवाइड बाय डेल u करना है। हम लिख सकते हैं डेल z डिवाइड बाय डेल x इंटू डेल x डिवाइड बाय डेल u प्लस डेल z डिवाइड बाय डेल y इंटू डेल y डिवाइड बाय डेल u। अब दिस इज इक्वल टू डेल z डिवाइड बाय डेल x। अब बताइए ये किसके बराबर है, डेल x डिवाइड बाय डेल u। del x Differentiation of e power u with respect to u is u, and cos v is now constant. e raised to power u cos v. हाँ मैंने लिखा डेल z डिवाइड बाय डेल y एंड दिस इज e पावर u sin v। समझ आया इतना। yes sir नाउ देयरफॉर अब कैलकुलेट कर लो लेफ्ट हैंड साइड जो आपको सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x टाइम्स डेल डेल क्या है डेल z डिवाइड बाय डेल v प्लस y टाइम्स डेल z डिवाइड बाय डेल u। दिस इज इक्वल टू x टाइम्स, नहीं x का वैल्यू डालिए यहाँ पे, x किसके बराबर है, किसके बराबर है x e e raised to power u cos v. cos v। और ये मैंने कैलकुलेट किया डेल z डिवाइड बाय डेल v किसके बराबर आया, Del z divided by del v किसके बराबर आया, minus del z divided by del x माइनस टाइम्स डेल z डिवाइड बाय डेल x e raised to power u sin v e पावर u sin v plus del z divided by del y प्लस डेल z डिवाइड बाय डेल y e power u cos v. e पावर u cos v प्लस y का वैल्यू डालिए, y किसके बराबर है, e पावर u sin v इनटू ये मैंने कैलकुलेट किया डेल z डिवाइड बाय डेल u, ये किसके बराबर आया, del z divided by del x डेल z डिवाइड बाय डेल x it is for u e पावर u cos v cos v प्लस del z del y डेल z डिवाइड बाय डेल y e power u sin e v पावर u sin v। अब कैलकुलेट कीजिए, अब कैलकुलेशन का काम है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन का काम है यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू, अब तो क्या, यहाँ पे e पावर u है, यहाँ पे e पावर u है, फिलहाल के लिए इस पे काम कीजिए आप। e पावर u तो कॉमन आएगा, e पावर u बाहर एक e पावर u है और अंदर से आएगा और एक e पावर u इनटू किसके बराबर आएगा, माइनस टाइम्स cos v sin v डेल z डिवाइड बाय डेल x प्लस cos स्क्वायर v डेल z डिवाइड बाय डेल y ब्रैकेट क्लोज। इज इट करेक्ट। अंदर से मैंने e पावर u कॉमन ले लिया और यहां से बाहर से मैंने cos v से मल्टीप्लाई, ठीक है बाकी तो कुछ नहीं। यहाँ पे सिमिलर प्रोसीजर अप्लाई करो, क्या होगा, e पावर u तो कॉमन आएगा, इन क्या है sin v cos v डेल z डिवाइड बाय डेल x प्लस sin स्क्वायर v डेल z डिवाइड बाय डेल y ब्रैकेट क्लोज। अब
और कॉमन आएगा कुछ यहाँ पे e power u into e power u is e power 2u. bases are same power sir added into यहाँ से भी यही है, यहाँ से भी यही है, ये तो कॉमन आएगा। अब क्या रहेगा वहां पे? अब रहेगा cos v sin v del z डिवाइड बाय del x प्लस cos square v del z डिवाइड बाय del y। अब यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस sin v cos v del z डिवाइड बाय del x प्लस sin square v del z डिवाइड बाय del y। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल होगा कि नहीं? सर यहाँ पे फाइनली क्या आएगा? e पावर 2u इंट यहाँ पे निकलेगा वो कुछ और कॉमन, डेल z डिवाइड बाय del कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा फाइनली? cos स्क्वायर v प्लस sin स्क्वायर v इंटू del z divided by del y. You know this identity, this is equal to 1 e power 2u del z divided by, this is equal to right hand side. समझ आया? समझ आया कि नहीं? यस सर सिंपल कैलकुलेशन है कि नहीं? डिफिकल्ट है? यस डिफिकल्ट है शबाश। इजाज डिफिकल्ट है? No, sir. मोहसिन समझ आया? Yes, sir. नेम इट फर्स्ट, इसका नाम फर्स्ट दीजिए इस इक्वेशन का, क्योंकि मुझे जरूरत है कुछ और मुझे डेल z डिवाइड बाय डेल z डिवाइड बाय डेल v होल स्क्वायर मुझे जरूरत है ना। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? डेल z डिवाइड बाय डेल y। मुझे यहाँ पे जरूरत है ना, लेकिन ऑन द राइट हैंड साइड चेक कीजिए, डेल z डिवाइड बाय डेल v होल स्क्वायर मुझे जरूरत है, डेल z डिवाइड बाय डेल u होल स्क्वायर मुझे जरूरत है। इसीलिए यहाँ क्या हमें क्या करना है? स्क्वायरिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि डेल z डिवाइड बाय डेल v ही आया ना फाइनली ये आंसर, डेल z डिवाइड बाय डेल v। कट था ना होल स्क्वायर कट पेस्ट ना डेल z डिवाइड बाय डेल v जब आपने कैलकुलेट किया, नाम फर्स्ट रखिए और डेल z डिवाइड बाय डेल v का नाम सेकंड रखिए। रखा नाम? सर Squaring equation first and second we get, करो स्क्वायर, क्या मिलेगा? स्क्वायरिंग अब पेज टर्न कीजिए पहले सर। इक्वेशन फर्स्ट, एक मिनट, we get यही पेज। यस सर। किया कंप्लीट? सर यस सर यस सर। सर ओके सर ठीक है टर्न पे। स्क्वायरिंग अब बताओ, स्क्वायरिंग करके आपको क्या मिलेगा? फार्मूला बना a माइनस b होल स्क्वायर नहीं, अभी मुझे बताओ ना किसके बराबर आएगा? डेल z डिवाइड बाय डेल v होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा?
किसके बराबर आएगा डेल z डिवाइड बाय डेल minus del z divided by del x माइनस टाइम्स डेल z डिवाइड बाय डेल x e raised to power u sin v e raised to power u sin v plus del z divided by del y del z divided by del y e raised to power u cos v. e raised to power u cos v whole square. अब इवॉल्वेट कर सकते हो यहाँ पे, कर लीजिए. तो पहले सेकंड को भी देना है ना, ई पावर यू तो कॉमन आएगा, आएगा ना. तो सेकंड को भी देना है ना स्क्वायर. हाँ, उसको भी हम कर लेंगे. तो इवॉल्वेट कर लो ना, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना. हम लिख सकते हैं ना ऐसे ई पावर 2u तो कॉमन आएगा, आएगा. Yes, sir. ये अंदर आएगा कॉमन ई पावर यू, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो बाहर क्या आएगा. e power 2u इज इट सो. अंदर क्या रहेगा फिर, माइनस डेल z डिवाइड बाय डेल x साइन v प्लस डेल z डिवाइड बाय डेल y cos v स्क्वायर. अब फर्दर ऐसे चलो एंड, और हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग किसको करना है, डेल z डिवाइड बाय डेल u होल स्क्वायर. किसके बराबर आएगा सुभाष, वो बता. वो बताओ. del z divided by del x डेल z डिवाइड बाय डेल x e power u e पावर u cos v cos v plus del z divided by del y डेल z डिवाइड बाय डेल y e power u sin v. e पावर u sin v. सेम टू सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो आप. e पावर 2u तो कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, डेल z डिवाइड बाय डेल x cos v प्लस डेल z डिवाइड बाय डेल y sin होल स्क्वायर. अब कर लो, यू नीड टू ऐड, क्योंकि अब देखिए आपको क्या दिखाना है, आपको उनका एडिशन दिखाना है. किसके बराबर दिखाना है वो तो खुद ब खुद आएगा, ठीक है ना. एडिंग, इसका नाम 4 रखिए, इसका नाम 5th रखिए, थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ. एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ. वही क्या मिलेगा हमें, हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड कीजिए तो क्या आएगा आपको, डेल z डिवाइड बाय डेल v होल स्क्वायर प्लस डेल z डिवाइड बाय डेल u होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक स्टेप डायरेक्टली आप कर सकते हो. यहाँ पे e पावर 2u है, यहाँ पे e पावर 2u है तो कॉमन आएगा e पावर 2u. अब ब्रैकेट स्टार्ट कर लो, क्या आएगा यहाँ पे, माइनस डेल z डिवाइड बाय डेल x साइन v प्लस डेल डिवाइड बाय डेल y cos v होल स्क्वायर प्लस डेल z डिवाइड बाय डेल x cos v डेल z डिवाइड बाय डेल y sin v होल स्क्वायर. ठीक, इतना समझ आया, समझ आया इतना. Yes, sir. अब देखिए आपको ये e पावर 2u यहाँ पे जरूरत ही नहीं है. आप किस साइड को, किस साइड में आपको ये जरूरत है e पावर 2u, आप देखिए खुद आपको क्या दिखाना है. ये किस साइड में होना चाहिए, e पावर 2u इसके साथ होना चाहिए ना, इन सम्स के साथ. प्रूव क्या करना है, प्रूफ फिर देखिए प्रूव क्या करना है. Is equal to देखो sir. इसके बराबर हमें दिखाना है, वेट, इसके बराबर हमें दिखाना है. देखिए ये मैंने कैलकुलेट किया, डेल z डिवाइड बाय डेल u, डेल z डिवाइड बाय डेल v तो मैंने कैलकुलेट किया, होल स्क्वायर भी कैलकुलेट किया, इनका ऐड भी कैलकुलेट किया, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए, e power minus 2u. और माइनस 2u. लेकिन वो तो ऑन द राइट हैंड साइड है ना, उसको शिफ्ट कीजिए, वो यहाँ पे है ना,
लेकिन हमें कहाँ पे जरूरत है, इस साइड में। मैं क्या करना है, शिफ्ट कर लो, क्या आएगा, e पावर माइनस 2u इंटू del z डिवाइड बाई del v होल स्क्वायर प्लस del z डिवाइड बाई del u होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, दिस इज इक्वल। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, फॉर्मूला यूज करके del z डिवाइड बाई del x, ठीक है ना। खलीची क्वेश्चन मार्क देते हैं इसमें पागल। लेंथी कैलकुलेशन वाले। अब बने ऐसे कर माइनस क्या हो जाता है। अब क्या कर लो, हाँ हाँ, थोड़ा पेशेंस रख लो कैलकुलेशन करने में। del z डिवाइड बाई del x sin v होल स्क्वायर प्लस 2ab twice a is equal to del z divided by del x sin v 2ab, b is del z divided by del y cos v plus b square, what is b, del z divided by del y cos v whole, इसमें भी फॉर्मूला यूज कीजिए, a plus b whole square will get प्लस करके del z divided by del x cos v whole square plus twice del z divided by del x cos v into b del z divided by del y plus del z divided by del y sin v whole square. Simply formula use करें, simple calculation, it is not difficult calculation, लेकिन उससे भी बेहतर है ना, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से आसान है, लेकिन याद है वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। मस्त लगा। यहाँ पे आई थिंक डेट ये इससे भी मजे वाली चीज है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या हमने कोई डिफिकल्ट स्टेप यूज ही नहीं किया। ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा कि नहीं, cos v sin v del z डिवाइड बाय del z डिवाइड बाय del y del z डिवाइड बाय del x del z 2 माइनस प्लस, तो कैंसिल होगा ऑब्वियसली। मैं तो मैं कर गया कैंसिल मगर क्यों नहीं, आप बताओ क्यों। del z डिवाइड बाय del y sin v हो जो del z डिवाइड बाय del x sin इस मल्टीपल से ही शिफ्ट है अब होगा कैंसिल कि नहीं, सर। ओके किया कंप्लीट। बस एक स्टेप है बाद। मैंने किया कंप्लीट कि नहीं, यस सर। ड्राव है। हाँ निखिल, अब लास्ट स्टेप है बस। ऊपर वाला मैं इरेज कर सकता हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट मत उठाना है, स्क्रीनशॉट अगर उठाना है तो उठाओ, क्योंकि मुझे ऊपर वाला इरेज करना है एज क्योंकि मैं यहीं पे कैलकुलेट अप करूंगा। अब पेज टर्न करने से प्रॉब्लम इसमें होगा, तो इसलिए मैं पेज टर्न अब कर लो कैलकुलेट, हो जाएगा इसमें। तो नंबर राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड किसके बराबर आएगा, del z डिवाइड बाय del x होल स्क्वायर, क्योंकि अब नेगेटिव साइन नहीं रहेगा, साइन स्क्वायर v प्लस del z डिवाइड बाय del y होल स्क्वायर एक्स बोलिए। cos स्क्वायर v। अब इसमें कॉमन आएगा, अब देखिए बस लास्ट स्टेप है।
مقابل del z divided by del x whole square cos square v plus del z divided by del y whole square sin square। अब क्या है, यहाँ पे भी sin square v है, यहाँ पे भी sin, नो, या हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें आइडेंटिटी बनाना है। यहाँ पे डेल ये वाला कॉमन आपको लेना है। डेल z डिवाइड बाई डेल x होल स्क्वायर, यहाँ पे भी डेल z डिवाइड बाई डेल x होल स्क्वायर, इन दो टर्म्स को कंबाइन कर लो, क्योंकि आपको आइडेंटिटी बनाना है sin स्क्वायर v प्लस cos स्क्वायर v। सो इसलिए हमें कॉमन लेना है डेल z डिवाइड बाई डेल x होल स्क्वायर। तो यहाँ पे रहेगा sin स्क्वायर v प्लस cos स्क्वायर v। plus इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? डेल z डिवाइड बाई डेल y होल स्क्वायर इज इनटू रहेगा फिर cos स्क्वायर v प्लस sin स्क्वायर v। So this finally you will get del z divided by del x whole square, this is 1 plus del z divided by del y। यही तो हमें दिखाना भी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मैंने ऑलरेडी लाया सॉल्यूशन पार्ट का जो है। अब यही समझ आया? अब और दो क्वेश्चंस हैं और दो एग्जांपल्स हम उस पे कर सकते हैं, लेकिन वो बड़े वाले एग्जांपल्स हैं, मुझे नहीं लगता आज होगा वो कंप्लीट वो दो एग्जांपल्स। और तो एग्जांपल्स पे Essa हम outra pagati. हम कल कंप्लीट Certo. करेंगे। Muito raro. थैंक यू।